Let's start. Indian Evidence Act 1872. So we will be starting from section 1. Section 1 rasla short title extent and commencement. Short title re kahela this is Indian Evidence Act 1872 came into force re commencement asla kebe first day of September 1872. मन रहिला केबे आस्तिला फोर्स रे केबे 1st September 1872 रे आस्तिला. Now application of Indian Evidence Act. Indian Evidence Act all over India को apply करे. Indian Evidence Act all court martial को apply करे except Army, Navy and Air Force. Indian Evidence Act सब प्रकार judicial proceeding को apply करे. Indian Evidence Act affidavit को apply करे नहीं. Indian Evidence Act proceeding before an arbitrator को apply करे नहीं. So my question to you is Indian Evidence Act 1872 when came into force? 1st September 1872. Whether Indian Evidence Act applies to all over India or not, whether it applies to all the criminal proceedings or not, whether it applies to all court martial or not, but what kind of court martial could apply kare nahi? Army, Navy and Air Force. Whether Indian Evidence Act applied to affidavit? No. Whether Indian Evidence Act applied to arbitration proceeding? No. Whether Indian Evidence apply to administrative tribunal? No. Whether Indian Evidence Act apply to departmental proceeding? No. Whether Indian Evidence Act apply to industrial tribunal? Yes. Industrial tribunal को apply करे. Okay. Income tax tribunal को apply करे ना नहीं? Income tax tribunal को apply करे. Okay. ठीक है. This is all about first. Then asla interpretation clause, which is the most important section of Indian Evidence Act. Interpretation clause रे मन रखंतु first court include कला कौन कौन. एटी गोटे क्वेश्चन आसीबो court include A judges, B magistrate, C all person legally authorized to take evidence, all of the above. What will be your answer? All of the above. So एटी question आसला court includes all judges, all magistrate, all person legally authorized to take evidence. But काहा को apply करे नहीं? Arbitrator को apply करे नहीं. तो आउ गोटे क्वेश्चन आसीबो कोर्ट डज नॉट इंक्लूड जजेस, मजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, एनी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस. आर्बिट्रेटर को अप्लाई करे नहीं. वी गॉट टू क्वेश्चंस हियर. देन आसला फैक्ट्स. फैक्ट्स को दीटा वेरी डिवाइड करा जाए. गोटे आसला फिजिकल फैक्ट, गोटे आसला साइकोलॉजिकल फैक्ट. Physical fact kala anything, state of thing, relation of thing capable of being perceived by the senses. So anything around this world happening in this world is a fact, and anything of which we are mental conscious is our psychological fact. तो physical fact और psychological fact भितर difference हला. Physical fact को directly perceive करा जाई परिबो, psychological fact को directly perceive करा जाई परिबो नहीं. Physical fact केमती जाना पड़िबो डायरेक्टली, साइकोलॉजिकल फैक्ट केमती जाना पड़िबो एडमिशन, कन्फेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थ्रू. सो फैक्ट्स को केतेटारे डिवाइड करा है इंडियन एविडेंस एक्ट रे डेटा रे. कौन कौन? फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट. को प्रकार फैक्ट को डायरेक्टली परसीव करा जाए? फिजिकल फैक्ट. को प्रकार फैक्ट को डायरेक्टली परसीव करा जाए परिबो नाही? साइकोलॉजिकल फैक्ट. साइकोलॉजिकल फैक्ट को केमिति प्रूफ करा जाए परिबो? एडमिशन, कन्फेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द्वारा. Then asla, what do you mean by facts in issue? Man rakhantu any fact from which either itself or in connection with the other, existence, non-existence, nature, extent of any right, liability, disability asserted by one and denied by the other in a suit or proceeding is called facts in issue. तो फैक्ट्स इन इश्यू रे क्वेश्चन आसिला कि फैक्ट्स इन इश्यू रे जणे क्वेश्चन करूची, जणे असर्ट करूची, जणे डिनाय करूची. एंड असर्टन जे करूची और डिनायल जेडा जोडा होची सेटा राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी रो एक्जिस्टेंस, नॉन एक्जिस्टेंस, नेचर ऑफ एक्सटेंट ऊपर होची. तो क्वेश्चन आसला जेनरली सिविल केस हो को क्रिमिनल केस हो, जे केस करे से असर्ट करे ना नहीं और जे केस डिफेंड करे से डिनाय करे ना नहीं. सो दिस इज फैक्ट्स इन इश्यू. फैक्ट्स इन इश्यू रे प्रीलिम्स रे मे बी बेसिक क्वेश्चन आसीबनी, बस एतिके आसीबो assert by whom plaintiff and denied by whom defendant, assert by whom prosecution, denied by whom accused person. Okay, सबुतक फैक्ट्स इन इश्यू गोटे गोटे फैक्ट ना नहीं, बट सबुतक फैक्ट गोटे गोटे इश्यू हम कि जो फैक्टा कोर्ट रे सब्जेक्ट मैटर रे अच्छी asserted by one, denied by the other as to the nature, extent, existence, non-existent, asserted by one, denied by the other, whether that is the fact in issue or not. Fact in issue is always relating to right, liability, disability or not. Very good.
इंडियन एविडेंस एक्ट रे मन रखु एविडेंस रो टर्म टा गोटे लैटिन एक्सप्रेशन रू आसला जहार ना हला एविडेंस एविडेरा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट रो एविडेंस रो टर्म लैटिन टर्म रू आसला जहार ना हला एविडेंस एविडेरा। एविडेंस एविडेरा माने हला स्टेट ऑफ बीइंग प्रूव। स्टेट ऑफ बीइंग प्रूव इज इंडियन एविडेंस एविडेरा। इंडियन एविडेंस एक्ट रे एक्चुअली डिफाइन करिनी एविडेंस कोन बट इंक्लूड करिछि दुईटा जिंस को एविडेंस बोली कुहा जाय। गोटे आसला ओरल एविडेंस आ गोटे आसला डॉक्यूमेंटरी evidence. Oral evidence रे कौन कहला? All the statement which the court permits are required to be made before it by witnesses in relation to the matter of fact under inquiry. So whenever there is a witness going to the court giving a statement relating to a fact under a matter of inquiry, he is said to be the oral evidence. And when you are producing any document including electronic records for inspection of the court, that is called as documentary evidence. So evidence kete prakar asla? Oral and documentary. Now there is category of oral evidence. Oral evidence again has been divided into direct or indirect. Direct evidence are the evidences which is directly perceived by the witnesses. Witnesses jaha directly perceive करचंती सेटा को direct evidence को जाए। Indirect evidence रे दीटा आसला गोटे hearsay evidence and circumstantial evidence. Hearsay evidence is no evidence according to the principle of section 60 आमे आगु को पढ़िया। Hearsay evidence माने unoriginal evidence, second hand evidence जोड़ा कि तुमे देखी ना हो जी देखी ची जे परसीव करिछि से आसी कि तुमको कहिछि आ तुमे कहूछ, that's hearsay evidence. Next आसला circumstantial evidence कोन? Circumstantial evidence आसला evidence of different witnesses as to different circumstances which cumulatively form a chain जोठी की interpretation आसुची कि ए लोक छड़ा आउ केही भी ऑफेंस कमिट करी नथिवे। जदि ए देखुची बी को घरे एंट्री करियार आउ ताकू मारी के आसियार ए हैला डायरेक्ट विटनेस कहीं से डायरेक्टली कमिशन ऑफ द ऑफेंस को देखुची परसीव करूचे। बट ए घर को जिबार जने देखिला, ए घर बाहरियार जने देखिला, ए पॉइंट रे नाइफ धोइयार जने देखिला, ए कहितला जनकु कि दरकार पड़ले मु ताको मार देबी। ए माने डिफरेंट डिफरेंट एविडेंस आस टू डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दोचंती क्युमुलेटिवली जोड़ा चेन फॉर्म करछि कि ए माने ए एक्यूज पर्सन छडा आ केही भी ऑफेंस कमिट करी नाही। दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रो प्रीलिम्स पर्पस रो केष्टा जिंस मन रखथांतु। जदि क्वेश्चन आसला गोटे कोर्ट रे डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऊपर प्राधान्य बेसी काहाकू दिया जाय? ऑफ कोर्स डायरेक्ट एविडेंस। जदि गोटे केस पाइन डायरेक्ट एविडेंस नाही देन तुमे प्राधान्य काहाकू दियो? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रो मिसिंग चेन ता सब बेले लिंक्ड थिबा निहाती दरकार, मिसिंग लिंक नथिबा दरकार, रिजनेबल डाउट नथिबा दरकार। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रो मोटिव कम्स टू वेरी इंपोर्टेंट प्ले। मोटिव गोटे बहुत इंपोर्टेंट लिंक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रे। एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रे जदि क्युमुलेटिवली चेन फॉर्म करूची कि ए लोक छडा कोनोसी भी लोक ऑफेंस कमिट करनी देन सेठी ताको लायबल करा जाई पारियो। आउट आसले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रे जदि दीटा व्यू क्रिएट होचे, गोटे इन फेवर ऑफ द अक्यूज पर्सन गोटे अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, देन को व्यूटा निया हबो? जोडा इन फेवर निया हबो बिकॉज़ बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन। Circumstantial evidence we are having three important case laws. गोटे आसला अन्नन चिंतामन लागू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जोठी लोकड़ा को कन्विक्ट करा हेतिला। देन आसला फादर बेनेडिक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जोठी लोकड़ा को एक्विट करा हेतिला। आ गोटे हनुमंत केस आसे देखिदेबे मु काहू डाकी जदि मते मन पके दिनु से केसटा कोडा थिला। हनुमान केस गोटे थिला सेटा जोड़ा कि लीडिंग जोड़ा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रे लीडिंग पॉइंट्स विषय डिस्कशन करथिला। तो मते किछटा क्वेश्चन आंसर दियंतु। इंडियन एविडेंस एक्ट रे एविडेंस को सेक्शन रे डिफाइन करला? 3 रे इंडियन एविडेंस एक्ट रे एविडेंस रो डेफिनेशन रे लिटरल मीनिंग ऑफ एविडेंस को हाई छि कि नो। इंडियन एविडेंस एक्ट रू एविडेंस टा को प्रकार रो टर्म रू आस्थिला? लैटिन टर्म जहार माने कोन थिला? स्टेट ऑफ बीइंग प्रूफ। से वर्ड टा कोन थिला? एविडेंस एविडेरा। एविडेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स कौन कौन? ओरल और डॉक्यूमेंटरी। Oral evidence has been divided into how many types? 2 types, direct and indirect.
Direct means directly perceiving, or indirect means hearsay and circumstantial. Whether hearsay evidence is an evidence, whether circumstantial evidence is an evidence. Circumstantial evidence को evidence हवा पाएंगे सेटा cumulatively should form a chain थिबा दरकार ना नहीं. Doubt किछि थिले सेटा circumstantial evidence हबो. Motive whether plays an important role under circumstantial evidence or not. Whether Father Benedict versus State of Kerala is a case of circumstantial evidence or not. Anand Chintamani Lagu versus State of Bombay. Then Hanumant Govind case. Okay. Hanumant Govind, Hanumant Govind Nargundkar versus State of Madhya Pradesh. Then documentary evidence again divided into two categories, primary and secondary, which we are going to deal with later. Okay. Next as proved, disproved, not proved. Khali man log to definition kona. A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes in it exists or consider its existence so probable that a prudent man ought under such circumstances act upon the supposition that it does exist. When you're putting a matter before a court and court से matter को देखिए जानुचंती कि ये जिनसड़ा है और से जिनसड़ा एते प्रोबेबल अछि कि से मैटर को तुमे जहा को भी देखै तांत से सेया ही कहि तांत या हिची बोली देन को हबो सेडा प्रूव हे गेला बोली एंड जदी सेडा देखि कि एते प्रोबेबल अछि कि जे भी देखथांत से कहि तांत एडा हेनी बोली सेडा को हाइ जिवो डिसप्रूव हे गेला बोली. एंड प्रीलिम्स रो क्वेश्चन हैला व्हेन अ फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड दैट इज कॉल्ड एज नॉट प्रूव्ड. प्रूव्ड हेनी कि डिसप्रूव हेनी सेडा को नीदर प्रूव्ड कुहा नॉट प्रूव्ड कुहा जिवो. मर्डर हेछि जाना पड़ी गेला सेडा को कोन कुहा हबो प्रूव्ड. मर्डर है नहीं जाना पड़ेगा सेटा को कौन को हाबो डिसप्रूव्ड. मर्डर है चिना नहीं जाने पड़ सेटा को कौन को हाबो. देन आसला इंपोर्टेंट जिंसो मेन इंपोर्टेंट जिंसो गोटा छाड़ दे छ पेज वोल्ट जाइथिला फैक्ट्स इशू रेलेवेंट आउ गोटे Okay, so next come to relevant. One fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred under Keteru Keta section 5 to 55. तो रेलेवेंस टा केते केते कहला 5 to 55. रेलेवेंस टा लीगल ना लॉजिकल मन रखते लीगल हेतिबा निहाती दरकार. लॉजिकल रेलेवेंसी को कोड एक्सेप्ट करे नहीं अनलेस अंटिल सेटा लीगल न हो अछि. So every legal relevances are logically relevant, but every logical relevance may not be legally relevant. To legally relevant, it should be coming under 5 to 55. आ भीतर अस्तिबा निहाती दरकार. The next is the document. Man rakhantu document means any matter described or expressed upon any substance by letters, figures, mark or more of those means for the purpose of recording that matter. तो document रे first आसिला document टा express हेतिबा दरकार, substance ऊपर हेतिबा दरकार, को भी means रे हेतिबा दरकार, letter, figures, marks or more of those means for the purpose of recording हेतिबा निहाती दरकार. तो गोटे मैप गोटे डॉक्यूमेंट ना नहीं, गोटे लेटर गोटे डॉक्यूमेंट ना नहीं, गोटे फोटोग्राफ गोटे डॉक्यूमेंट ना नहीं, गोटे कैरिकेचर गोटे डॉक्यूमेंट ना नहीं, गोटे लिथोग्राफ गोटे डॉक्यूमेंट ना नहीं. गवर्नमेंट रो व्हाइट कलर रो पेंटिंग इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट. व्हाई? बिकॉज सेडी मार्क होची सब्सटेंस रिकॉर्डिंग के दिस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट. टॉमस्टोन इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट. कोठी मल्ल केते केबे मल्ल केबे जन्म हेलो. सो दीज आर ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट. तापर नेक्स्ट आसिला एविडेंस हमें पढ़ले, डॉक्यूमेंट हमें पढ़ले, रेलेवेंट हमें पढ़ले, प्रूफ डिसप्रूव नॉट प्रूव हमें पढ़ले. हो मते कहि चलंतु इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल को अप्लाई करे, आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट को अप्लाई करे, जुडिशियल प्रोसीडिंग को अप्लाई करे, यस ऑल ओवर इंडिया को अप्लाई करे, आर्बिट्रेशन को अप्लाई करे, एफिडेविट को अप्लाई करे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को अप्लाई करे. इंडियन एविडेंस एक्ट रे सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज कथा कहला. फैक्ट माने दीटा कौन कौन सेटा physical or psychological. Anything which is perceived by the senses is anything of which a person is mentally conscious is psychological fact or physical fact bhituru directly koda asibo physical fact. Psychological fact or physical fact bhituru koda admission or confession ru jana padibo, koda circumstances ru jana padibo. जदि गोटे fact टा issue रे अछि ताको कोन को हबो fact issue. Relevancy केतरु केते section गोटे relevancy हबा पई कि कौन हेतिबा दरकार लीगली रेलेवेंट हेतिबा नियति दरकार. सबतक लॉजिकल रेलेवेंट लीगली रेलेवेंट की
नो सबतक लीगली रिलेवेंट लॉजिकली रिलेवेंट और नॉट जदि गोटे क्वेश्चन आसुची एविडेंस डिफाइन कोठी हेची कोठी सेक्शन 3 रे एविडेंस कम्स फ्रॉम द वर्ड एविडेंस एविडेरा व्हिच मींस स्टेट ऑफ बीइंग प्रूव्ड एविडेंस केतेटा प्रकारर ओरल और डॉक्यूमेंटरी डॉक्यूमेंट केते प्रकारर प्राइमरी एंड सेकेंडरी oral kete prakarara direct and indirect whether hearsay evidence is an evidence whether circumstantial evidence is an evidence whether motive is an important link under circumstantial evidence what is the three famous cases under circumstantial evidence Father Benedict Anand Chintamani Laku Hanuman Govind right next proof disprove not proved right if it is neither proof not disproved that is a state of not very good मुझे भी पूरा ध्यान देके सुनो प्रिजम्पशन सेक्शन 4 रे आसला सेक्शन 3 नुहे प्रिजम्पशन सेक्शन 4 रे आसला प्रिजम्पशन को दीटा कैटेगरी रे डिवाइड करा हेछि फैक्ट आउ लॉ फैक्ट रो प्रिजम्पशन को मे प्रिजम्पशन को हेजे जोड़ा को नेचुरल प्रिजम्पशन बोली को हेजे लॉ रो प्रिजम्पशन दीटा रे डिवाइड हेछि जोड़ा को आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन को हेजे शाल एंड कंक्लूसिव प्रूफ मे प्रिजम्पशन इज नेचुरल प्रिजम्पशन शाल प्रिजम्पशन इज आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन so natural conclusive proof is also artificial presumption. Shall presumption is rebuttable, may presumption is rebuttable, conclusive presumption is irrebuttable. तो यदि question आसला rebuttable presumption of law shall presume, irrebuttable presumption of law conclusive proof, rebuttable presumption of fact may presume, irrebuttable presumption of fact किसी नहीं कहेंगे may presume is always rebuttable. So we are having tinta type of presumption as to this law and fact too. But presumption data law of fact ताको divide कर दले tinta may presumption, shall presumption, conclusive proof. So let's start from may presumption. May presumption को logic natural presumption को है जे may presumption presumption of fact branch may presumption रे कोर्ट को डायरेक्ट करा जाए और may presumption ता discretionary power of the court may presumption रे कोर्ट presume करी पारे न भी करी पारे may presumption से पर्यंत presumption हुए जो पर्यंत may presumption रे गोटे जिनसडा को disprove करा न जाइछि या फिर कोर्ट may presume न भी करे कि can call for evidence कोर्ट evidence पाई कि निजे डाकी दिए may presumption रो sections गुड़ा हैला 86 to 88 90 113a 114 then shall presumption is mandatory कोर्ट रे डिस्क्रिशनरी पावर एठी न थाए शाल प्रिजम्पशन रे जदि कोर्ट को डायरेक्ट करा है जे कोर्ट रे प्रिजम्पशन नबा पई कि बाध्य मे रे प्रोवाइडेड शाल रे डायरेक्टेड देन शाल प्रिजम्पशन ता ऑलवेज रिबटेबल को पर्यंत कोर्ट शाल प्रिज्यूम नबा जो पर्यंत रिबट हेई नाही शाल प्रिजम्पशन रे कोर्ट मे कैन नॉट कॉल फॉर एविडेंस शाल प्रिजम्पशन आसला 79 to 85 89 105 111a 113b and 114a conclusive presumption आसला गोटे फैक्ट को देखिकी आ गोटे फैक्ट को कोर्ट डिक्लेयर कर दबो प्रिज्यूम प्रूव्ड बोली दैट इज conclusive presumption जोड़ा को रिबर्ट करा जाई परिबो नाही जोड़ा कि सेक्शन 41 112 and 113 रे आसला तो when we are coming to may presumption first आसला may presumption रे provided or directed provided may presumption is discretionary or mandatory discretionary whether may presumption रे court presume कर परिवा ना नहीं कर परियो may call for evidence or not yes जदि court presume करचंदी को पर्यंत करिवे जो पर्यंत disprove any very good then shall presumption directed or provided directed shall presumption is mandatory or discretionary mandatory shall presumption रे court जितले presume करूचंदी whether this can be disproved or not yes whether in shall presumption court call कर परिवे evidence ପାଇଁ कि no whether conclusive proof रे if one fact is declared to be proved another fact will be declared as proved or not whether conclusive proof रे court evidence call करंती whether conclusive proof रे disprove हे पारे आंसर में प्रिजम्पशन कितने प्रकार रो कौन कौन फैक्ट आउ लॉ फैक्ट प्रिजम्पशन कोटा मे लॉ प्रिजम्पशन कोटा shall आउ conclusive fact presumption of fact is always rebuttable or not and may presumption को प्रकार रे presumption को जाए natural presumption may presumption रे whether it is mandatory or discretionary law presumption केतेटा कैटेगरी डिवाइड करछि दीटा कोन shall आउ conclusive shall टा डायरेक्टरी ना mandatory आउ conclusive presumption टा डायरेक्टरी ना mandatory shall टा रिवर्ट हे परिबा ना नहीं yes conclusive रिवर्ट हे परिबा ना नहीं yes ए तीनटा भितरु कोथरे कॉल फॉर एविडेंस करा हबो
एबे मते सेक्शन को 86 टा मे ना शाल ना कंक्लूसिव 90 मे 113 ए 113 बी 114 ए shall 105 79 to 85 shall 41 conclusive 112 113 बुझियला take a break of 2 minutes move first to एतकी जाए पचेरबे then we'll be starting with next section okay so tell me आओ कहिए दरकार एगुड़ा ना 5 स्टार्ट करें ओके लेट्स स्टार्ट 5 then question asla section 5 Section 5 के लिए evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact and issue and of such other fact as are hereafter declared to be relevant and no others. Okay. तो मन रखन्तु section 5 is about two parameters of Indian Evidence Act. Indian Evidence Act रे दीटा जिनस evidence रे दिया जाए. कौन गोटे आसला existence non-existence of facts and issue और असला anything जोड़ा एटी relevant बोली कुहा जायछि and no other got it तो क्वेश्चन आसीबो कि इंडियन एविडेंस एक्ट रे एविडेंस कौन दिया जाए नंबर 1 existence non-existence of any fact and issue नंबर 2 जोड़ा declared as relevant fact and no other कोठी कहला सेक्शन 5 रे सेक्शन 5 रे गोटे मैक्सिम मन रखिबे frustra probator quod probatum non relevant it would be frustrating and disgusting to prove a fact which is not relevant जो जिनसटा relevant नाही ताको कोर्ट रे नै कि कहयाडा is disgusting and frustrating तो सेक्शन 5 सेति पई कहला कि एविडेंस हमें बाछि के कोर्ट को नबा और एविडेंस हमें दीटा जिनस रे ही दबा फैक्ट्स एंड इश्यू को डायरेक्टली जोड़ा प्रूफ की डिसप्रूव करूची या फिर जोड़ा relevant fact ता छडा कोनोसी जिनस एविडेंस रे दिया जिवो नाही सेक्शन 5 बुझियला सेक्शन 6 रे दीटा टाइप रो क्वेश्चन आसीबो गोटे आसीबो रेस जस्ट कोठी कहला अपन कहबे सेक्शन 6 आ गोटे से कहबो कि फैक्ट्स व्हिच दो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट एन इशू as to form part of the same transaction quota register that is section 6 तो section 6 रो प्रिंसिपल कोन कहला कि जदी गोटे जिनसडा करा जे एंड register रो माने मन रखंतु थिंग्स डन it include करा गला word spoken forming part of the same transaction but register माने हला things done including word spoken forming part of the same transaction तो same transaction रे किंबा transaction रो soon before soon after जदि तुमे किछि जिंस करूचो जो या फिर कहूचो जोटा कि स्पॉन्टेनियस अछि और जोटा कि से मैटर विषय रे इलुसिडेट करोछि जोटा कि नैरेटिव नुहे ओपिनियन नुहे देन सेटा रजिस्टर अंडर रे आसीबो and register of famous case रे first asla R versus Bedingfield only narration hobo nahi R versus Foster रे soon before soon after the death soon before soon after the transaction रो question आसुची then register बस एतिकी ही prelims पे मन रखो okay prelims point of view रे एतिकी मन रखो और civil cases रे भी register निया जाई पारिबो okay direct indirect सब आसियो so tell me register को section रे कहला section 6 then जब मु कहबी things done including words spoken forming part of the same transaction तार माने कोन register रे narration गुडा निया जाए opinion निया जाए register spontaneous हेथिबा दरकार true or false register bystander मानकर भी निया जाय परिबो yes register party मानकर भी निया जाय परिबो yes register victim रो भी निया जाय परिबो yes register accused रो भी निया जाय परिबो yes register माने हला things done including words spoken forming part of the same transaction soon before and soon after को register रे include करा है ना नहीं yes register civil proceeding रे निया जाय परिबो ना नहीं yes next asla section 7 section 7 रे asla तीनटा जिंसो चारटा जिंसो गोडे asla facts which are occasion cause effect और opportunity occasion cause effect opportunity तो क्वेश्चन आसला कि वेदर ए रॉब्ड बी और नॉट देखा गला कि जेतो बेले से गोटे बुलिया पे कोडे जाउतिला से पोजीशन ऑफ मनी रे थिला एंड ए जिंसडा गोटे ओकेजन क्रिएट करछ ना नहीं ताको रॉब करिया पे के सेंती क्वेश्चन आसला कि से मर्डर हेज ना नहीं मार्क ऑफ स्ट्रगल ब्लड स्टेन एंड ऑल वेदर दिस आर ऑल इफेक्ट और नॉट तो क्वेश्चन आसला इफेक्ट रो गोटे केस अछि स्पेंसर कूपर केस कि जदि स्टोमक रे पानी नहीं आ पानी रे बुडी थिला ता माने मरि की पड़थिला ना नहीं यस जदि पानी रे बुडी थांता
स्टोमक रे वाटर कंटेंट थांता सो दीज आर ऑल इफेक्ट तो सेक्शन 7 रे क्वेश्चन आसीबो ऑक्सीजन कोठी कहितिला इफेक्ट कोठी कहला अपॉर्चुनिटी कोठी कहला कॉज कोठी कहला आ कॉज माने एठी कोन केमिति मरिला पॉइजन पी की मरिला कि हार्ट अटैक रे मरिला सेडा सब रिलेवेंट फैक्ट सेक्शन 7 रो इंपोर्टेंट केस हला स्पेंसर कूपर केस ओके नेक्स्ट कम टू सेक्शन 8 सी सेक्शन 8 रे तीनटा जिंस अछि हमें डिवाइड करके पढ़े तीनटा जिंस रो फर्स्ट आसला मोटिव प्रिपरेशन आउ कंडक्ट तो जदि तीनटा रेलेवेंट फैक्ट अछि मोटिव प्रिपरेशन आउ कंडक्ट तो इफ आई आस्क यू मोटिव कोठी अछि 8 रे कंडक्ट कोठी अछि 8 रे प्रिपरेशन कोठी अछि 8 रे नेक्स्ट क्वेश्चन हला मोटिव आउ प्रिपरेशन टा काहर इंपोर्टेंट मोटिव आउ प्रिपरेशन टा ओनली एक्यूज्ड पर्सन रो इंपोर्टेंट बट कंडक्ट काहर इंपोर्टेंट कंडक्ट इंपोर्टेंट accused person रो कंडक्ट इंपोर्टेंट पार्टीज मानकर कंडक्ट इंपोर्टेंट तांको एजेंट मानकर कंडक्ट इंपोर्टेंट विक्टिम रो तो कंडक्ट टा खाली accused person रो नुहे कंडक्ट टा समस्तकर इंपोर्टेंट पार्टीज एंड देयर एजेंट एज वेल एज accused एज वेल एज विक्टिम बुझियला एटा फर्स्ट क्वेश्चन देन लेट्स कम टू मोटिव जदि क्वेश्चन आसीबो गोटे केस रे डायरेक्टली इंटेंशन प्रूव हे गला तो आमको क्रिमिनल एलिमेंट कौन दरकार मेन्स रे और एक्टस रियस motive whether is a guilty mind it is only an ulterior object why the guilty mind has been found तो क्वेश्चन आसला कि जदि गोटे केस रे डायरेक्टली इंटेंशन प्रूव हे गला whether सेटी मोटिव रे एविडेंशियरी वैल्यू किछि अछि नो बट जदि डायरेक्टली इंटेंशन प्रूव हो नहीं मोटिव हैज कम्स टू प्ले और नॉट एंड सेठी मोटिव को इंटेंशन प्रूव करिया पई कि दिया जाय परिबा ना नहीं एंड मोटिव कोठी गोटे पार्ट प्ले करिबो इंपोर्टेंट एविडेंस है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो इंटेंशन हला गोटे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम मोटिव है ताकू प्रूव करिया पाए कि गोटे एविडेंस से पई इंडियन एविडेंस एक्ट रो सेक्शन 8 रे मोटिव को गोटे रेलेवेंट फैक्ट बोली कुहा जाय गॉट इट मोटिव रिलेटेड क्वेश्चन रा आंसर मते दियंतु वेदर गुड मोटिव और बैड मोटिव आधरे किछि डिफरेंस अछि दीटा जका एविडेंस रे दिया जाय परिबा ना नहीं वेदर मोटिव इज सिमिलर टू इंटेंशन जदि मोटिव ऑफ इंटेंशन भितरे अल्टीरियर ऑब्जेक्ट कोटा फोरनलेस ऑफ द एक्ट कोटा इंटेंशन क्रिमिनल एलिमेंट पाएंगे कौन दरकार जदि इंटेंशन डायरेक्टली प्रूव होची मोटिव किछि दरकार हबो जदि इंटेंशन डायरेक्टली प्रूव होनी मोटिव दरकार हबो ना नहीं whether bad motive punishes or good motive excuses समति किछि अछि ना मोटिव ही हितिबा दरकार खाली आ मोटिव टा एडिक्वेट हितिबा दरकार आ इनएडिक्वेट मोटिव हेले भी सेटा भी एविडेंस रे दिया जाई पारिबो 1000 crore पाई मारिबा एडिक्वेट मोटिव और नॉट 1 rupee by Maria inadequate motive or not but motive अच्छे ना नहीं whether you can give that in evidence or not so adequacy of motive matter करे नहीं motive good की bad हवा matter करे नहीं motive टा कहाँ रही थी दरकार relevant accused person को motive relevant ही थी दरकार बुझे रहती प्रिपरेशन में किछि नाही सिंपल जिंस मु पॉइजन किनिया को जाइथिली एंड से लोकड़ा पॉइजन खाइ के मरछि वेदर आई विल बी हेल्ड लायबल जदि मते बुक करा होछि फॉर दैट ऑफेंस वेदर दिस फैक्ट कि मु पॉइजन किनिया को जाइथिली विल बी अ प्रिपरेशन और नॉट तो प्रिपरेशन माने अरेंजिंग और डिवाइजिंग द मीन्स टू कमिट द ऑफेंस मन रहला arranging or devising the means to commit the offense man rehla arranging or devising the means to commit the offense is preparation and preparation is relevant under section 8 and preparation kahara relevant accused person is relevant next come to conduct see there is a difference between conduct and character conduct is the external behavior of a person dodi ki jiba chhat upuru deiba छुरी स्टैब करिया पोखरी रे छुरी धोइबा these are all conduct external behavior character माने what the person is about ता nature कोना लोक मन ताको केमती जानी चंते so question आसे section 8 रे कोनटा important external behavior of a person conduct is important दौड़ी की गला छुरी नहीं की पसे गला छुरी नहीं की बाहरी गला फु छुरी जाए की धोतिला ताको देखा गला पॉन्ड रे तो these are all conduct under section 8 which is relevant एबे क्वेश्चन आसला कंडक्ट ता कहार रेलेवेंट कंडक्ट एक्यूज रो भी रेलेवेंट विक्टिम रो भी रेलेवेंट पार्टीज रो भी रेलेवेंट एजेंट रो भी रेलेवेंट नेक्स्ट आउट जिंस आसला कंडक्ट इज रेफरेंस टू कंडक्ट इन कनेक्शन टू दीटा एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 बलसो मन रखंदे जदि क्वेश्चन आसिला कि ओनली अ स्टेटमेंट इज रेलेवेंट एज अ कंडक्ट नो खाली गोटे स्टेटमेंट को कंडक्ट कुआ जाई परिबो नाही ओनली स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ कंडक्ट देन कोठी गोटे स्टेटमेंट को कंडक्ट बोली कुआ जिवो दैट इज अंडर एक्सप्लेनेशन 1 तो एक्सप्लेनेशन 1 कहला कि द वर्ड कंडक्ट in this section does not include a statement
unless those statements accompany and explain acts other than the statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statement under any other section of the act. The only statement conduct हुए नहीं unless and unless or until it is accompanied by something जोटा कि सेटा को more than a statement बनेई दिए. मु जदि घरे जाके दौड़िकी कहली कि ये मते बाड़ेला, whether it's a mere statement or not, whether that will be a conduct. बट मुझे तो कहली ये मतलब बाड़ेला चलो पुलिस को कंप्लेंट दबा मुझे जाके पुलिस रे कंप्लेंट देली, whether now my statement is accompanied by an act जोटा मो statement रो probability of सत्ता हितवा को बढ़े देला ना नहीं, so whether now this will be a conduct or not. Okay, तो खाली एबे प्रिलिम्स पे एते के मन रखंतु only statement conduct हुए नहीं, but if it is accompanied by something जोटा कि सेटा को सेटार सत्ता हबार probability को बढ़े दिए, then that is a conduct. Explanation 2 कहला when the conduct of a person is relevant, the statement made to him or in his presence and hearing which affects the conduct is also relevant. जन को कहगला कि पुलिस आसुची से दौड़ी की पड़ेला, दौड़ी की जीवा इज अ कंडक्ट और नॉट, से दौड़ी की पड़ेला इज रेलेवेंट और नॉट. व्हाई? बिकॉज मु ताको कहली पुलिस आसुची, तो पुलिस आसुची रो स्टेटमेंट मु जोड़ा कहली दैट इज आल्सो अ रेलेवेंट फैक्टर नॉट. तो मु कोर्ट रे जाके कोन देखेबे कि आगे जेहेतु कहगला पुलिस आसुची से दौड़ी की पड़ेला ता माने आरो आ सहित कौन संपर्क थिला, बुझेला ना नहीं. तो जदि आम फर्स्ट रू सेक्शन वाइज आसिया, सेक्शन 8 रे को प्रकार तीनटा जिनस को रेलेवेंट बोली कहगला मोटिव प्रिपरेशन आउ कंडक्ट. मोटिव और प्रिपरेशन टा कहार थाए एक्यूज पर्सन रो, कंडक्ट टा कहार थाए पार्टीज एजेंट एक्यूज विक्टिम, राइट. गुड एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 8 कहा को डील करू छे कंडक्ट, whether only mere statement is a conduct, but explanation 1 if it is accompanied by some act whether it is a conduct or not. If a conduct is relevant, conduct जहाँ द्वारा influence हला that fact is also relevant or not, बुझेला एतिकी. Now conductor case is Queen versus Abdullah. आउ गोटे जिनस मन रखु कंडक्ट एक्ट फैक्ट्स एंड इश्यू सहित कनेक्टेड थिबा निहाती दरकार. इफ द कंडक्ट इज नॉट कनेक्टेड विथ द फैक्ट्स एंड इश्यू देन सेटा रेलेवेंट होबो नाही. मुझे उनको घरे छुरी नहीं कि पसेर जने देखला, whether that is my conduct or not, whether that is previous to the offense or subsequent to that offense. Previous हम जन को घरे छुरी नहीं कि दौड़ी की पड़े जने देखला, whether that is subsequent to the offense or not. तो गोटे previous और subsequent दीटा conduct एठी relevant होबा ना नहीं. तो section 8 रे मन रखंतु conduct previous था subsequent था दीटा का conduct relevant हुए section 8 under है. So let's come from the beginning. Section 1 is about short title, extend and commencement, and this came into force on 1 September 1872 रे. Very good. Then question asla section 1 रे application of Indian Evidence Act कौन, whether it applies to judicial proceeding or not, whether it applies to court martial, army navy air force को apply करे, no, whether it apply to affidavit, no, whether it apply to arbitrator, no. Then Indian Evidence Act रा section 3 is about interpretation clause. सेटा छाड़ दियंतु, सेटा मु जहा जहा कहली, बट सेथिरे गोटे जिनस मन रखंतु रेलेवेंसीटा कोन हेतबा दरकार, लीगल रेलेवेंसी हेतबा दरकार. प्रिजम्पशन को सेक्शन रे कहला, प्रिजम्पशन केतेटा प्रकारर दीटा कोन फैक्ट एंड लॉ. फैक्ट कोन मे, लॉ टा कोन शाल एंड कंक्लूसिव. रिपीटेबल प्रिजम्पशन को गुडा मे आउ शाल, इरिटेबल को गुडा कंक्लूसिव. आ मन रखिबे रिपीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हेले शाल, repeatable presumption of fact hele may, discretionary power of the court quota may, mandatory quota law, shall and conclusive. May call for evidence court hi may re au बाकी रे evidence call कर परिबे नहीं. Very good. Two parameters of evidence हला गोटे anything which prove the fact and issue or disprove the fact and issue, that is also relevant and can be given, and all the relevant facts can be given. कोठी कहला 5 रे things done including words spoken forming part of the same transaction. Registic co-section narrative hobo, opinion hobo, spontaneous hobo, parties bystander or accused victim dijon samastinkar hobo. Yes. Then next asla occasion cause effect opportunity 7. Then motive preparation conduct. Explanation 1 कौन कहला mere statement होबनी. Explanation 2 कौन कहला if conduct is relevant जहाँ द्वारा से influence होची that's also relevant. Very good. Next come to section 9. See, आउ गोटे जिनस मन रखि
मन रख दियंतु काले मते कहर को मन ना पड़िबो मु कहिबी कोटा सब्सटैंटिव एविडेंस कोटा कोरोबोरेटिव एविडेंस बट मन रखंतु सब्सटैंटिव एविडेंस टा ओनली जुडिशियल कन्फेशन 133 एंड डाइंग डिक्लेरेशन मन रहला जुडिशियल कन्फेशन रु खाली सोल कन्विक्शन हे जिवो डाइंग डिक्लेरेशन रु खाली सोल कन्विक्शन हे जिवो 133 रो भी कन्विक्शन हे जिवो बाकी प्राय जेतिक रहला सब कोरोबोरेटिव एविडेंस और सब्सटैंटिव एविडेंस रो माने हैला कोरोबोरेटिव माने ओनली दैट एविडेंस इज नॉट इनफ बाकी आउ एविडेंस देखा जाओ सब्सटैंटिव एविडेंस माने ओनली दैट एविडेंस इज इनफ एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट एविडेंस कन्विक्शन कैन लाई तो 7 6 8 एवडा सब कोरोबोरेटिव ना सब्सटैंटिव ऑल आर कोरोबोरेटिव वेरी गुड नेक्स्ट कम टू 9 okay 9 रे कौन कौन facts टुडा relevant कहला facts introducing facts and issue is relevant facts explaining facts and issue relevant facts supporting rebutting is a relevant facts establishing identity is relevant fixing time and place is relevant relation of party is a relevant fact जदि गोटे fact and issue रो introductory fact whether it's relevant or not गोटे फैक्ट एंड इश्यू को एक्सप्लेन करिया ପାଇଁ फैक्ट इटा रिलेवेंट और नॉट गोटे फैक्ट एंड इश्यू को सपोर्ट करूची किंबा रिपोर्ट करूची देन रिलेवेंट और नॉट देखा गला कि मु से दिन तांको घर तले छिडा आइखली जोनो किडनैपिंग हेतला मु द एक्यूज पर्सन बोली कुहा होचे वेदर इट इज सपोर्टिंग और नॉट बट सेन मु तांको घर तले थिली काहेना मो गाड़ी पंक्चर हो जाइथिला ओ से जगह रे इटा रिपोर्टिंग और नॉट देन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करिबा इज रिलेवेंट और नॉट देन टाइम एंड प्लेस इज रिलेवेंट और नॉट रिलेशन इज रिलेवेंट और नॉट कुहा गला कि से undue influence करचंती एबे क्वेश्चन आसले से undue influence करिबा पई कि रिलेशन भी सेमती हेतिबा दरकार देखा गला he is the doctor and that the other person is the patient whether now the relation is relevant fact or not because it's presuming the undue influence ro thing बुझेला so let's come to TI parrot test identification parrot TI parrot रे कोन कोन क्वेश्चन आस पारे फर्स्ट क्वेश्चन आसीबो TI parrot को सेक्शन रे कहूची 9 सेकेंड क्वेश्चन आसीबो टीआई पैरेड रो एविडेंशियरी वैल्यू कोन कोरोबोरेटिव एविडेंस टीआई पैरेड किए अरेंज करंती पुलिस ऑफिसर टीआई पैरेड किए करंती मजिस्ट्रेट टीआई पैरेड पर्सन आउ थिंग दीटा रो हे पारे ना नहीं यस टीआई पैरेड रो लीडिंग केस कोन टीआई पैरेड रो गोटे लीडिंग केस अछि भूबल सन्यासी मोर एक्चुअली से केस ता माने नहीं देख देबे भूबल सन्यासी Google Street out सन्यासी विभावती देवी वर्सेस राजा रामेंद्र नारायण ओके लीव इट एटा प्राय एते आसनी क्वेश्चन पे हो टेल मी टीआई पैरेड रे जतबेले तुमको टीआई पैरेड पे छिडा करा जाए तुमको मिक्स करा जाए ना विथ सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन ओके टीआई पैरेड रे से अनुसार हुए तो टीआई पैरेड रे इंपोर्टेंट एलिमेंट कोन जे विटनेस अछि से जब टीआई पैरेड रे आसिक लोक गुडा को चिन्हिला एविडेंशियरी वैल्यू केते बेले जाना पड़िबो जेबे देखा हबा जो जागा रे ऑफेंस हेतला सेठी प्रिवेलिंग लाइट थिला ना नाही विटनेस रो आई साइट कोन थिला ताको देखला बेले तार स्टेट ऑफ माइंड कोन थिला कोन अपॉर्चुनिटी ता पाखरे थिला से लोक को देखिबा पाइंके जदि टीआई पैरेड रे विटनेस आछंदी 4 जण 2 जण आइडेंटिफाई कले 2 जण आइडेंटिफाई कलेनी देन टीआई पैरेड इज डिसमिस्ड 3 जण आइडेंटिफाई कले जण आइडेंटिफाई कलेनी ता माने इट इज एस्टैब्लिश्ड 3 जण आइडेंटिफाई कलेनी जण आइडेंटिफाई कला ता माने आइडेंटिटी इज नॉट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टीआई पैरेड को सब बळे मैथमेटिकल प्रोपोजिशन अनुसार निया जीवो देन टीआई पैरेड रो टीआई पैरेड रे तुम एडवोकेट प्रेजेंट रही परिबे ना नहीं यस बट इंटरफेयर किछि करिवे नहीं टीआई पैरेड रे मन रखंतु पुलिस इन्वॉल्व होई परिबे नहीं ओनली अरेंज पुलिस करि देबो करिवे कंडक्ट के मजिस्ट्रेट टीआई पैरेड पूर्वरु ऑफेंस हबा परे और टीआई पैरेड पूर्वरु जदि विटनेस को अपॉर्चुनिटी मिल जाय से लोक को देखियार देन टीआई पैरेड कैंसल्ड और नॉट जदि गोटे लोक को टीआई पैरेड करैबा पई कि आनिला बेले सेम जीप रे एक्यूज पर्सन को आनचंती सेम जीप रे ताको आनचंती देन से जगह से टीआई पैरेड एस्टैब्लिश होबो कि किंतु हाबिल या फिर हाबिलदार जदि ताको देखै दुची ए लोकटा धरा हेचे देन से टीआई पैरेड एस्टैब्लिश हला कि गोटे रिकॉग्नाइज लोक रो टीआई पैरेड हुए whether अमिताभ बच्चन सलमान खान दिस आर ए सब जिनस रे टीआई पैरेड हे परियो
No, recognized लोकर TI period ही परिबो नहीं because identity is known to everyone. TI period रे लोकटार offense हबा परठु केही identity जान नथिबा दरकार so that witness आसले देखि कहबो कि मैं ए लोक को offense commit कला बेले देखि थिली. And what is the TI period रो object कि long gap of time रे जतरे से ट्रायल को जीवो मे बी ता मेमोरी फेल हो जाइथियो तो TI period रे आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर देले हमें जान देलु कि ठीक लोक को धरा हेछि आ ए लोक को विटनेस देखि थिला. But TI period is a corroborative evidence. It's not a substantive piece of evidence. TI period रो guideline कहिछि Mahesh versus State of Rajasthan. Okay. So answer me. Section 9 रे कौन relevant fact बोली कुहा गला? Introduction जोड़ा दोछि सेटा relevant, explanation जोड़ा दोछि सेटा relevant, supporting or rebutting, identification, time and place, relation. मन रहला TI period रे आइडेंटिफिकेशन टा गोटे पर्सन आ गोटे जिंस दीटा रही परिबा ना नाही. TI period टा कहा द्वारा हुए पुलिस द्वारा हुए as soon as possible after the arrest हुए ना नाही. TI period रो ऑब्जेक्ट कोन to test the memory of the witness. TI period रे जदि चार जण आछंती दि जण आइडेंटिफाई करले दि जण आइडेंटिफाई कर पलेनी डिसमिस तीन जण आइडेंटिफाई करले एस्टैब्लिश तीन जण करलेनी नॉट एस्टैब्लिश. TI period कहा द्वारा कंडक्ट होबो मजिस्ट्रेट. TI period को अरेंज के करिवे पुलिस ऑफिसर. TI period पूर्व जदि से लोक को देखार अपॉर्चुनिटी मिलचे देन TI period वैलिड होबो. नेक्स्ट आसला सेक्शन 10. सी सेक्शन 10 रे कंडीशंस फर्स्ट मन रखंतु. सेक्शन 10 टा रिलेटिंग टू एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. तो सेक्शन 10 रे जतबले गोटे केस आसुची फर्स्ट तो गोटे एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी थिबा निहाती दरकार. गोटे कॉन्स्पिरेसी हेथिबा निहाती दरकार. सेकंड आसला प्राइमा फेसी फर्स्ट आसला प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी थिबा दरकार. सेकंड आसला जहा कॉन्स्पिरेटर कॉन्स्पिरेसी कला परठु कहिची करिची या फिर लिखिची सेगुडा सब रेलेवेंट होबो इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन हेथिबा दरकार आ कॉन्स्पिरेसी टा एग्जीक्यूट होबा भितरे हेथिबा निहाती दरकार. और जदि एमती किछि फैक्ट अछि सेटा दीटा जिंस पई कि एविडेंस रे दिया जिवो गोटे टू प्रूव द एक्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड टू प्रूव कि दीस वेयर द कॉन्स्पिरेटर्स. तो सेक्शन 10 रो क्वेश्चन आसला कॉन्स्पिरेसी रो रेलेवेंसी कोठी आसला फैक्ट रिलेटेड माने कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करिया पे रेलेवेंट फैक्ट कोठी कहला 10 रे. सेक्शन 10 रे ट्रू और फॉल्स मते कहबे. सेक्शन 10 को एप्लीकेशन को आनिया पई कि से फैक्ट जतले रेलेवेंट फैक्ट हबो ता पूर्वरु प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी थिबा दरकार. ट्रू और फॉल्स. कॉन्स्पिरेसी रो एविडेंस टा सेक्शन 10 रे सतबेले ही निया हबो जेबे से फैक्ट टा कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट हबा पूर्वरु अछि. ट्रू. कॉन्स्पिरेसी वंस एग्जीक्यूट हे जाउची माने कॉन्स्पिरेसी जो ऑफेंस पे हिची ऑफेंस एग्जीक्यूट हे गेला हबनी ता परे जहा कहचो ऑफेंस एग्जीक्यूट हबा पूर्व हां माने कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूशन आ ऑफेंस रो कमिशन भितर हेतबा नियति दरकार. द टर्म इज ऑफेंस. ओके देन कॉन्स्पिरेसी रे जदि गोटे लोक किछि कहिछि सेटा रेलेवेंट हबना नै लेखिछि सेटा रेलेवेंट हबना नै करिछि सेटा रेलेवेंट हबना नै देन सेटा रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन थिबा दरकार ना नै. सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल. गोटे लोक बम ब्लास्ट पई कि चिट्ठी लिखिला बम ब्लास्ट पई कि बारूद सप्लाई हैला जो दिन बम ब्लास्ट करियार थिला सेटा फेल हे गेला परवर्ती काल रे आउ गोटे प्लान एग्जीक्यूट करिया पे लेटर लिखा गला. फर्स्ट बम ब्लास्टिंग रो ऑफेंस पई कि सेकंड लेटर टा रिलेवेंट हबो कि बिकॉज़ इट हैज बीन ऑलरेडी कमिटेड और फेल्ड तो ता पर जहा लिखा है से गुडा और रिलेवेंट हबो नाही. सेक्शन 10 रे जो एविडेंस टा दिया होची सेटा दीटा जिंस को प्रूव करिया पे दिया हबो कोन कि there is an existence of conspiracy and these are the person who are conspirator. Section 10 बुझी हलो. Section 11 is called as a residuary section. Section 11 रे these are the things जोड़ा को relevant fact बोली कुहा जाए. First असला plea of alibi, second असला non-access, third असला survival of the alleged deceased person after supposed time of death, fourth asla commission of the crime by a third person, fifth asla self inflicted harm. क्वेश्चन आसला कि जदि accused person कहूची कि मु से जगह रे नथिले जो दिन ऑफेंस कमिट हेतिला I was somewhere else then से जगह रे whether this is plea of alibi or not मते कहि चलंतु plea of alibi रो एविडेंस हबा दबा पई कि biased witness चलिबो. Yes, if it is from an impartial person having a greater evidentiary value.
बट जदि निज लोक भी कहते चलो कहीं तुम्हें कौटी अच्छे तुम निज लोक ही जानता बाहर लोक जानी न था तो यू कैन नॉट डिस्कार्ड द एविडेंस जस्ट बिकॉज कि तुम निज लोक आसचे पार्शियल इम्पार्शियल दीटा लोक प्ली ऑफ एलिबाई दे पारे नेक्स्ट गोटे लोक प्ली ऑफ एलिबाई एविडेंस नेला but sir negative prove gala whether this can be a reason for conviction no this can only be a corroborative thing कि से मिछ कहूची but this cannot be a reason for conviction plea of alibi रो माने कोन somewhere else सेठी नथली आउ कोठी थी plea of alibi के prove करे accused person because this is the plea of accused person then asla non access of the husband जदि कुहा होची पिलाटा legitimate हस्बैंड प्रूफ कर देला कि आई वाज नोवेयर एट द टाइम जो जेबेठु से अच्छी कनसीव करिछि मु सेठी नथिली देन दैट इज नॉन एक्सेस एंड दैट विल बी प्रूविंग कि ए पिलाटा तार लेजिटिमेट पिला नुहे बोली जदि गोटे लोकर डेथ नै कि क्वेश्चन चलछि आ देखा गला से लोकटा बंचिचे वेदर इट इज अ रिलेवेंट फैक्ट टू डिस्प्रूव कि से मरिछि बोली ना नै जदि गोटे कमिशनटा बाय थर्ड पार्टी हेछि आ कुहा होछि कि एटा ए करछि बोली देन आउ केही करेनी ए करछि तो कमिशन ऑफ ए थर्ड पार्टी इज a fact which disproves the fact or not कि सेटा ए करछि बोली then जदि गोटे लोग सुसाइड कमिट करछि whether this is a relevant fact to disprove कि तार मर्डर हेछि ना नै because if se suicide करछि then se murder केमति कला so these are the things under section 11 रे दीटा प्रकार रो फैक्ट दिया जाय गोटे असला जो गुड़ा इनकॉन्सिस्टेंट विद द फैक्ट्स इन इश्यू और जो गुड़ा गोटे फैक्ट इन इश्यू को हाईली प्रोबेबल कि इम्प्रोबेबल करे मन रहा सेक्शन 11 रे दीटा प्रकार रेलेवेंट फैक्ट अच्छे गोटे आसला इनकॉन्सिस्टेंट फैक्ट गोटे आसला मेकिंग इट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल इनकॉन्सिस्टेंट फैक्ट रे आमे जो गुड़ा पांचटा पढ़ले सेटा आसला जदि मु नथिली केमिति ऑफेंस कमिट कली जदि मु नथिली पिलाटा लेजिटिमेट केमति हला जदि कमिशन ऑफ एक्ट बाय एनी थर्ड पार्टी की देन मु केमति कली जदि डिसीजटा बंची जाइछि जेन से मरिला केमिति जदि से सुसाइड करछि देन तार डेथ केमिति मर्डर केमिति हैला आ जोटा मेकिंग इट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल देन आल्सो दैट इज अ रिलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 11 जदि ए बी सी डी कहउचंती डेथ करिचंती तांको भितरु किए ई रो ए बी सी डेथ करी नाहंती ता माने हाईली प्रोबेबल कोटा डी करिछि एंड दिस कैन बी गिवन एज एन एविडेंस कि ए बी सी डी ऊपर डाउट अछि ए बी सी करनांती तो हाईली प्रोबेबल कोटा डी करछि बोली तो एनीथिंग व्हिच इज मेकिंग अ थिंग हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल दैट इज आल्सो एन एविडेंस एंड कैन बी गिवन एज अ रिलेवेंट फैक्ट तो सेक्शन 11 को रेसिडुअरी सेक्शन बोली कुहा जाय मानेला this is a question section 11 is called as a residuary section माने बळका रहि जायतिबा fact section 11 is divided into two category कौन inconsistent fact and highly probable or improbable inconsistent fact has been divided into five categories कौन alibi non access survival commission of third party self inflicted harm or making it probable or highly improbable सेक्शन 11 को एग्जॉस्टिव कुहाबो ना नॉन एग्जॉस्टिव कुहाबो दिस इज ओनली एन एग्जांपल पांचटा फैक्ट कोडा इनकंसिस्टेंट हबो आ छडा भी आरे बहुत सारा जिंस थिबो जोडा इनकंसिस्टेंट हे पारे तो सेक्शन 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव तो प्रीलिम्स रो कौन क्वेश्चन आसला रेसिडुअरी सेक्शन कोडा 11 सेक्शन 11 रे को प्रकार रो रेलेवेंट फैक्ट अछि दीटा प्रकार रो कोन inconsistent and which is making highly probable or improbable inconsistent fact केते प्रकार रो अछि एठी पांचटा जोडा कि exhaustive नुहे आ छडा भी अलग inconsistent fact थाई पारे but majority cases रे inconsistent fact कोन थाई number 1 plea of alibi माने I was somewhere else and this is a plea from whom accused person then asla non access then asla survival of alleged deceased person after supposed time of death commission of crime by a third person self-inflicted harm okay next come to section 12 12 कौन कहला in suit for damages facts tending to enable the court to determine amount relevant in a suit in which damages are claimed any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be answered is relevant तो section 12 simply कहूची any fact जोड़ा कि गोटे कोर्ट को गोटे damages determine करिया पे help करे quantum that is a relevant fact and can be given as an evidence damages माने कौन compensation
तो कोर्ट कौन देखिए कंपेनसेशन डिसाइड करिवो जनकर स्टेटस जनकर हार्म जनकर इंजुरी जनकर रैंक जनकर रेपुटेशन तो जो फैक्ट्स गुडा डैमेजेस डिसाइड करिया पे दिया जाए दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट एंड कैन बी गिवन एज एन एविडेंस ओके कस्टम और राइट ऊपर बहुत सेक्शन अच्छे सेक्शन 13 रे साइड रे लिख दियंतु सेक्शन 48 section 48 and section 32 clause 4 section 32 clause 4 and section 32 clause 7 and section 32 clause 7 okay एवढा सब हमें पर डिस्कशन करिए पूरा सरला पर बट आगो सेक्शन 13 रे कौन कौन बुझियार अछि सेक्शन 13 रे कहला जेबे गोटे क्वेश्चन आस टू राइट आउ कस्टम आस और 13 रे राइट आउ कस्टम रे इंक्लूडेड एवरी काइंड ऑफ राइट्स एंड एवरी काइंड ऑफ कस्टम सब प्रकार राइट और सब प्रकार कस्टम every kinds of right every kinds of custom रे public right private right general right caste public right general right then asla custom रे public custom private custom general custom caste custom class custom right रे asla public right private right सब तक incorporeal right everything तो 13 ର राइट आउ कस्टम टा दुनिया रे थिबा सब प्रकार रो राइट सब प्रकार रो कस्टम को अप्लाई हबो देन नेक्स्ट आसला सेक्शन 13 रे राइट आउ कस्टम को प्रूफ करिया पाई कि दी प्रकार रो फैक्ट को रेलेवेंट कुआ जाय गोटे आसला ट्रांजैक्शन और आसला इंस्टेंसेस सो जदि तुम पाखरे गोटे फैक्ट अछि जोटा कि रिलेटिंग टू अ ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन रे से कस्टम और राइट क्वेश्चन जोटा अच्छी सेटा क्रिएट हेतिला क्लेम हेतिला मॉडिफाई हेतिला रिकॉग्नाइज हेतिला असर्ट हेतिला डिनाई हेतिला देन सेटा हला रेलेवेंट फैक्ट एज टू द कस्टम एंड राइट एंड जदि तुम पाखरे गोटे पर्टिकुलर इंस्टांसेस अच्छी जो इंस्टांसेस रु से जना पड़ुची से राइट विषय कि से कस्टम विषय किछि जोड़ा क्लेम रिकॉग्नाइज एक्सरसाइज हेछि देन दैट इज आल्सो रेलेवेंट फैक्ट तो सेक्शन 13 रे जदि क्वेश्चन टा कोन क्वेश्चन टा रिलेटेड टू राइट आउ कस्टम को प्रकार राइट सब प्रकार राइट्स को प्रकार कस्टम सब प्रकार कस्टम सेक्शन 13 रे रेलेवेंट फैक्ट रे कोन फैक्ट दिया होछि इंस्टांसेस आउ ट्रांजैक्शन और इंस्टांसेस रो एग्जांपल कोन जदि क्वेश्चन आसला तांकर से कुओरु पानी नबार राइट अछि ना नाही देखा गला गोटे गिफ्ट डीड अछि गिफ्ट डीडटा से कुओ पाई के दिया हेतिला राम बाबू को तांको गा लोकों को पाई के तो वेदर द गिफ्ट डीड इज अ ट्रांजैक्शन और नॉट अब इंस्टांसेस रे कोन कहला 10 वर्ष हेलाणी लोक माने सेठु पानी पी आसुचंती ता माने इट इज एन इंस्टेंस कि एटा चली आछि ना नै राइटटा तांकर राइट अछि ना नै तो सेक्शन 13 रो क्वेश्चन हैला राइट ऑफ कस्टम को सेक्शन रे क्वेश्चन रे थाए 13 रे और 13 रे रेलेवेंट फैक्ट कौन था इंस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन 13 रे राइट ऑफ कस्टम ता कौन प्रकार रे राइट ऑफ कस्टम सब प्रकार रे राइट ऑफ कस्टम पब्लिक प्राइवेट कस्टम रे पब्लिक प्राइवेट जनरल क्लास कास्ट सब आछ राइट तो मन रखंतु राइट माने जोटा लीगली हमको एंटाइटल्ड अछि कस्टम ऊपर किछटा क्वेश्चन आस पारे गोटे कस्टम टा सब बेले मन रखंतु रीजनेबल हेतिबा दरकार गोटे कस्टम टा सब बेले सर्टेन हेतिबा दरकार कंपलसरी हेतिबा दरकार पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट रे जाउ नथिबा दरकार इमोरल होय नथिबा दरकार एटा सब मेन रे दरकार तो नाही आसीबनी को छाडी अजते काहे की टाइम वेस्ट करी देन असला सेक्शन 40 सेक्शन 14 रे कहला कि जदि गोटे क्वेश्चन आछि एज टू एनी स्टेट ऑफ माइंड बॉडी bodily feeling then से जगह रे any fact जोड़ा से state of mind body and bodily feeling को दर्शाउछि that's a relevant fact तो सेक्शन 14 रे तुमरो को प्रकार फैक्ट आस पारे स्टेट ऑफ माइंड इंटेंशन नॉलेज गुड फेथ नेग्लिजेंस सब आस पारे इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी स्टेट ऑफ माइंड बॉडी और बॉडीली फीलिंग क्वेश्चन आसला तुमरो इंटेंशन थिला ना ना तुमरो गुड फेथ थिला ना नहीं तुमरो बॉडी रे छुरी जो पस्तिला तुमको से पेन टा थिला ना नहीं तुमरो कंडीशन ऑफ द हेल्थ कौन थिला इंश्योरेंस कला बेले दिस आर ऑल क्वेश्चन एज टू बॉडी एंड माइंड एंड बॉडीली फीलिंग और जो प्रकार फैक्ट सेटा शो करूछि दैट्स अ रेलेवेंट फैक्ट एंड कैन बी गिवन एज एन एविडेंस आर दीटा एक्सप्लेनेशन रहला कहला जदि गोटे स्टेट ऑफ माइंड को लेके क्वेश्चन आसीछि आउ सेठी स्टेट ऑफ माइंड को लेके जो फैक्ट थिबो सेटा पर्टिकुलरली सेही स्टेट ऑफ माइंड को लेके थिबा निहाती दरकार जनरल हेले हबो नाही क्वेश्चन आसला मते राम को मारिया को इच्छा अछि ना नाही मु आउ काहा को मारछि देखाउनी राम पई की कोन इंटेंशन अछि ता ऊपर ही भी क्वेश्चन दी माने एविडेंस दिया जिवो
जदि गोटे क्वेश्चन आसुची इंटेंशन रो स्टेट ऑफ माइंड रो प्रीवियस conviction can be a relevant factor or not, and previous conviction ro factor whether can be given as an evidence or not. तो section 14 रो diagram कोन से कॉपी टे की खुद दल करो मैले तो सेक्शन 14 रो डायग्राम कोन सेक्शन 14 रे क्वेश्चन आछि स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड रे सब प्रकार रो स्टेट ऑफ माइंड आसला तुमर इंटेंशन नॉलेज बैड फेथ गुड फेथ नेग्लिजेंस सब प्रकार रो जिंस आसला एठी then section 14 रे सब प्रकार रो फैक्ट कैन बी गिवन एज एन एविडेंस और नॉट then section 14 रो दीटा एक्सप्लेनेशन जदि तुमर स्टेट ऑफ माइंड को लेके क्वेश्चन अछि फैक्ट स्टेट ऑफ माइंड को जनरली देखुथिबा ना पर्टिकुलर टू दैट इंटेंशन थिबा दरकार पर्टिकुलर टू दैट स्टेट ऑफ माइंड थिबा दरकार नेक्स्ट आसला कि जदि तुमर गोटे स्टेट ऑफ माइंड जणक प्रति देखौछ प्रीवियस कमिशन टुवर्ड्स दैट पर्सन इज आल्सो एन एविडेंस और नॉट एंड से प्रीवियस कमिशन को प्रीवियस कन्विक्शन द्वारा प्रूव करा जाय परिबा ना नहीं ओके जदि मु पचारली कि ये जो गुड्स धरी छै सेटा स्टोलन गुड ना नहीं देखा गला ता पाखरे जहां भी अछि सब तक स्टोलन गुड whether this can be an evidence under 14 or not देखा गला तुमे ताकू डैमेज करिया पे चाहौछ ना नहीं एंड देखा गला प्रीवियसली तुमे ताकू बहुत थोड़ा डैमेज करछ देन whether this is a relevant factor or not तुम पाखरे बहुत सारा काउंटरफेट नोट आसला तामे तुमे जानि छ ना नहीं कि एटा काउंटरफेट बोली ओके नेक्स्ट कम टू सेक्शन 15 सी सेक्शन 14 रे कौन कहूतला स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग सेक्शन 15 रे ओनली वन ब्रांच सहित डील करछे जोटा कि इंटेंशनल और एक्सीडेंट हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन 14 एंड 15 मन रखतु 14 रे इट इज स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग 15 रे इट इज ओनली डीलिंग विद इंटेंशनल पार्ट जोटा कि कमिंग विथ एन एक्सीडेंट थिंग वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंट सेक्शन 14 रे सबु प्रकार फैक्ट को एठी एविडेंस रे दिया जाय परिबो बट एठी सिमिलर काइंड ऑफ फैक्ट्स दिबा निहाती दरकार तो सेक्शन 15 रे कोन कहला एटा पढि दियंतु तापर आई विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन 14 एंड 15 सो दैट अपन बेटर वे रे जानि परिबे व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन whether an act was accidental or intentional done with a particular knowledge or intention the fact that such act form part of the series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant तो एठी कौन कौन कंडीशन आसिला कि जो एक्ट क्वेश्चन रे थिबो सेटा इंटेंशनल किंबा एक्सीडेंटल नै कि क्वेश्चन रे थिबो देन सेटा गोटे सीरीज ऑफ ऑकरेंस भीतर पार्ट थिबो देन नेक्स्ट आसिला ऑकरेंस टा सिमिलर नेचर रे थिबो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम टाइम थे थिबो कि से माने कनेक्टेड थिबे जो पर्सन टा ऊपर एलिगेशन आछि से ही सब थरे कनेक्टेड थिबो एंड एटा सेक्शन 15 द्वारा प्रूव हेई पारिबो जदि गोटे क्वेश्चन आसला ये ताको जाने की धक्का पकेला ना एक्सीडेंटली बाजी गला देखा गला 3-4 थर से ताको धक्का मारी के गलानी whether it is a relevant factor or not आंको घर इंश्योरेंस क्लेम करे पे जाळु चंती ना एक्चुअली एक्सीडेंटली जळी जाउछे 5-6 थर जळी गलानी इंश्योरेंस क्लेम पाई ता माने एक्सीडेंटल ना इंटेंशनल सब बेले गाड़ी पार्क कला बेल को जणको गाड़ी धरे बाजी गला सब बेले बाजुची whether intentional or accidental सबु आडे चोरी करिया पे कि जाउचंती राजा कटुआळ हे कि रहउचंती आ चोरी करी के आसुचंती एथरे के भी जणको घर को जाइथले तांको घरे चोरी हे जेछि ता माने एमाने करचंती ना नाही सो क्वेश्चन आसला जेबे गोटे आसची as to intentional or accidental and तुमे से जो एक्ट करिछ सेटा केबेठू सिमिलर वे रे करी आसुचो and that is forming part of the same occurrences then से जगह रे whether that's a relevant factor or not तो आरो बहुत सारा केसेस अछि फर्स्ट मन रखंतु Mackin versus Attorney General for New South Wales ओके एटा चाइल्ड बरी केस भी बोली कुहा जाय से माने कोन करथिले रेगुलर बेस रो अडॉप्ट करथिले पिलांक डेड बॉडी बरी होथिला तांकर घर पछ पड़े ता माने पिला एक्सीडेंटली मरथिले ना इंटेंशनली Mackin versus Attorney General for New South Wales then R versus George Joseph Smith brides in bathtub जी भी ताकू बाहा होतिला bathtub रे बुड़ी के मर जाउतिला ता माने bathtub defective थिला ता माने intentionally ताकू मरा जाउ थिला ओके intentionally ताकू मारू
थिले ताको ब्राइड इन बाथटब बोली कुहा जाऊ थिला ओके केस हैला R versus Josh Joseph Smith bride in bathtub then Nura Tamim versus Emperor fire insurance case तांको सब बेले दुकान जली जाउथला कि घर जली जाउथला कोन गोटे जली जाउथला ता माने एटा इंटेंशनली होतिला ना नै ओके सो ए केस गुड़ा मन रहा तीन टा को बहुत ही इंपोर्टेंट केस आसे गोटे आसे मकीन वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर साउथ वेल्स आर वर्सेस जॉर्ज जोसेफ स्मिथ नूर तमीम वर्सेस एम्परर ए सब जगह रे इंटेंशनली करा होतला बोली कुहा गला आ गोटे लाला वर्सेस एम्परर अछि सेटा भी देखतेबे लाला एम्परर मते भी कहंतु ऑकरेंस टा गोटे हेले चलिबो माने प्रीवियसली थरे ही एमती हिथिला यस किंतु बेसी हेले एविडेंशियरी वैल्यू बेसी बढ़ी जीवा ना नहीं तो ऑकरेंस केतेडा हवा दरकार सेमती किछि नाही केते भी हेले चलिबो किंतु जेते बेसी एविडेंशियरी वैल्यू देन ऑकरेंस टा सिमिलर हिथिबा दरकार ना नहीं और सेही लोक सहित ही कंसर्न थिबा दरकार ना नहीं सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 14 जोठी तुमको इलस्ट्रेशन रे ओनली इंटेंशन पार्ट से तो डील करा गला दैट इज 14 जोठी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल कुआ गला देन आसला 15 14 रे स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग 15 it is only one part intention 14 रे any fact can be given as an evidence 15 रे it's only similar occurrences रो part हेतिबा निहाती दरकार बुझी हला तो क्वेश्चन आसिला ता पाखरे स्टोलन प्रॉपर्टी अछि देखा गला ता पाखरे बहुत सारा स्टोलन प्रॉपर्टी अछि 14 ना 15 देखा गला तांको घर जळी जाउछे पूर्वरु बहुत थोर तांको घर जळी जायछि इंटेंशनल ना एक्सीडेंटल माने को सेक्शन 15 14 15 बुझीगला नेक्स्ट कम टू 16 जदि तुम पाखु को Amazon डिलीवरी आछे तुम Amazon ऐप रे डिलीवर्ड देखौछि ना नहीं जदि तुम पाखु गोटे लेटर आछे लेटर जदि तुम पाखु न पहुंचीला पोस्ट ऑफिस रे थिबा ना नहीं तो जदि पोस्ट ऑफिस रे डेड लेटर बॉक्स रे लेटर नहीं ता माने लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय यू और नॉट तो जदि गोटे बिजनेस ट्रांजैक्शन रो गोटे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फॉलो करा जाय गोटे पर्टिकुलर वे रे बिजनेस हुए एंड से वे रे सेडा हेछि ता माने से एक्ट हेछि ना नहीं तो सेक्शन 16 कहेगा when there is a question whether a particular act was done the existence of any course of business according to which it is naturally would have been done is relevant तुम्हें गोटे लेटर रिसीव कले साइन करिवो ना नहीं कौन कहली मु हाँ जदि तुम्हें लेटर रिसिप्ट रे साइन करन तामे तुमे रिसीव करछो एवडा सब रेलेवेंट फैक्ट हिसाब रे एविडेंस रे दिया होबे ना नहीं तो सेक्शन 16 आसले एक्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट जदि गोटे पर्टिकुलर वे रे से बिजनेस टा हेछि दैट इज कैन बी गिवन एज एन एविडेंस सो ए पार्ट टा सही गला सो टेल मी को सेक्शन रे इंटरप्रिटेशन आछी प्रिजम्पशन कोठी आछी को गुडा एविडेंस रे दिया होबो कोठी आसला प्रेजुडिस कोठी आसला अपॉर्चुनिटी कॉज इफेक्ट occasion कोठी आसला मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट कोठी आसला introducing कोठी आसला explaining कोठी आसला rebutting supporting identification time place relation conspiracy relating to evidence residuary section कोडा that has been divided into केतेडा data inconsistent fact highly probable and improbable inconsistent has been divided into 5 कौन alibi non-access survival third party commission and self inflicted harm then damages को जो गुड़ा affect करे से गुड़ा relevant कोठी कहला right आउ custom कोठी कहला ता देरे relevant fact कौन transaction आउ instances एठी right आउ custom केते प्रकारनो सब प्रकारनो all then state of mind body and bodily feeling कोठी कहला 14 को प्रकारनो facts एठी relevant होची any fact then 15 कोटा से तो डील करला intentional or accidental एठी कोडा relevant होची similar occurrences और similar occurrences केतेडा does not matter जेतेडा बेसी सेते बेसी evidentiary value okay and 16 आसला course of business transaction next come to 17 भोको गले कहबे भोको गले हां 17 भोको गले ने ओके लंच ब्रेक आउ 10 मिनट पर दे देबे हैला 12:30 रे लंच ब्रेक हाँ एडमिशन कन्फ्यूजन पर आई विल बी गिविंग यू लंच ब्रेक ओके सो एडमिशन 17 रे डिफाइन करछि मन रखु एडमिशन
admission 17 रे खाए को झगड़ा कौन करछो admission 17 रे define कला 17 admission रे कौन कहला an admission is a statement oral or documentary or contained in an electric form which suggests any inference as to any fact an issue or relevant fact and which is made by any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned section 17 admission को define कर देला but section 17 complete admission कथा कहलानी कंप्लीट एडमिशन जाने पे हमको जाने दरकार किए एडमिशन कर परिबे जोटा कि 18 19 और 20 रे कहला 17 कोची एडमिशन गोटे स्टेटमेंट जोड़ा ओरल भी हे पारे डॉक्यूमेंटरी भी हे पारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रे भी हे पारे जोड़ा सजेस्ट करछि एंड इन्फरेंस रिलेटिंग टू द फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट एबे एडमिशन रिलेटिंग किछड़ा फैक्ट जोड़ा क्वेश्चन रे आसी पारे एडमिशन को सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग दीटा कैटेगरी रे डिवाइड करा गला मन रखंतु सब बेले स्टेटमेंट को दीटा कैटेगरी रे डिवाइड कराला सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन रो जनरल रूल हला एडमिशन ता सब बेले सेल्फ हार्मिंग ही हेतिबा दरकार सेल्फ सर्विंग को एडमिशन कुहा जाय नै काहे जणे तो ऑब्वियसली निज पाई के सब बेले कहबो तो सेल्फ हार्मिंग ता सब बेले एडमिशन हबो क्वेश्चन आसला एडमिशन काहा को दिया जाय एडमिशन काहा को भी दिया जाय परिबो इनफैक्ट सॉलिलोक्वी स्टेटमेंट गुडा भी एडमिशन हबो मु निजे को भी जहा कहूची सेडा भी जति जणे ओवरलोड करछे सेडा भी एडमिशन हबो देन एडमिशन ता साइन और जेस्चर रो मीन रे दिया जाय परिबा ना नहीं यस एडमिशन साइन और मीन रे भी दिया जाय परिबो इवन साइलेंस आल्सो अमाउंट्स टू एडमिशन और नॉट yes where there is a duty to speak then also silence is also amounts to admission dita category रे divide करा हला बड़ा असला formal admission बड़ा असला informal admission फॉर्मल एडमिशन माने कोन जो गुडा तुमे जुडिशियल प्रोसीडिंग रे दोछ पार्टीज माने इन राइटिंग रे दोचंती और जोडा रूल ऑफ प्लीडिंग रे पार्टीज माने लिखु चंती जुडिशियल प्रोसीडिंग राइटिंग रूल ऑफ प्लीडिंग सेडा को फॉर्मल एडमिशन बोली कुहा जाय बाकी जो गुडा कैजुअल कन्वर्सेशन एंड ऑल सेडा सब इनफॉर्मल एडमिशन बोली कुहा जाय सो आंसर मी एडमिशन कोठी डिफाइन करा वाला 17 जदि क्वेश्चन आसले 17 कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एडमिशन कोची ना इट इज 17 18 19 एंड 20 17 18 and 19 and 20 की एडमिशन कला एटा 17 रे कहे 18 19 18 19 और 20 रे कहला देन सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट केते प्रकार रा हार्मिंग एंड सर्विंग गुड एडमिशन हो पे सेटा को प्रकार रहितबा दरकार सेल्फ हार्मिंग हितबा नियति दरकार गुड साइलेंस रो एडमिशन होबा ना नहीं जदी ड्यूटी टू स्पीक साइन और जेस्चर एडमिशन होबा ना नहीं यस गुड एडमिशन ता काहा को भी दिया जाय परिबा ना नहीं in fact soliloquy admission is also relevant or not yes but admission okay next but admission kaharo relevant मन रखंतु समस्ते को admission कोड नबनी मु जदि गोटे स्ट्रेंजर टू द केस मो admission कोड के नबो तो admission कोड नबा पई कि किए हेतिबा दरकार कहा admission relevant हो एक तो पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग admission relevant or not तांको एजेंट relevant होबा ना नहीं तांकर रिप्रेजेंटेटिव मानकर हबा ना नहीं देन जो मानकर से सूट रे प्रोप्राइटरी एंड पेक्यूनरी इंटरेस्ट अछि तांकर हबा ना नहीं जहा टू से सब्जेक्ट मैटर डेराइव हिची तांका एडमिशन रेलेवेंट हबा ना नहीं सो पार्टीज आसला एजेंट आसला देन रिप्रेजेंटेटिव आसला देन पेक्यूनरी एंड प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट आसला देन जहा टू तुमे सब्जेक्ट मैटर डेराइव करछ सेक्शन 19 रो इलस्ट्रेशन कहूची सो दैट 19 अपन को माने पड़ जिवो जदि मु बी को कलेक्शन ऑफ रेंट पाई कि रखी छी बी कहला रेंट बाकी नहीं किंतु जे टेनेंट से कुछ मोर रेंट बाकी अछि मु जदि रेंट पाई कि गोटे सब्जेक्ट मैटर आनु छी गोटे सब्जेक्ट मैटर रेंट नै कि मु टेनेंट ऊपर केस करथांती ना नहीं जदि समते रेंट देइनी तो जदि करी थांती एबे जदि मु बी अगेंस्ट रे केस करूची सी रा एडमिशन इज रेलेवेंट और नॉट काहे ना जदि सी सेही केस रे एडमिशन देई थांता काहे ना सेटा तार सेल्फ हार्मिंग हे थांता एठी सब्जेक्ट मैटर जदि समय में अछि तार एडमिशन रेलेवेंट होबा ना नहीं तो 19 रे कौन कहला कि जदि तुमरो गोटे लोक अछि जहार पोजीशन और लायबिलिटी तुम अगेंस्ट रे अछि तुमे ता अगेंस्ट रे केस करना किंतु सेम सब्जेक्ट मैटर रे केस करछ देन जहाटू तुमरो पोजीशन और लायबिलिटी अगेंस्ट रे अछि तार एडमिशन ता रेलेवेंट होबा ना नहीं तो सेक्शन 19 इज एन एक्सेप्शन टू द पार्टीज एडमिशन देबे ना नहीं एठी थर्ड पार्टी भी एडमिशन दबे ना नहीं बीइंग अ स्ट्रेंजर नॉट द पार्टी टू द सूट देन तुमे जहा को एडमिशन पे रेफर करूछ कि ताकू पचर से जहा कहबो मु सेया मानिबी वेदर दैट इज एडमिशन और नॉट मैकेनिक को पचर गाड़ी खराब थिला ना नहीं डॉक्टर को पचर हॉर्स अनसाउंड थिला ना नहीं तो जहा को रेफर करछि तार एडमिशन पे रिलेवेंट हो बट एठी कंडीशन आसिला मु रेफर करूथिबा दरकार और मो अगेंस्ट रे ही सेटा होथिबा दरकार मो अगेंस्ट रे हेले ही हबो
देन जहाँ को रेफर कर से कहिथिबा दरकार और से कहवा पूर्व मुझे रिवोक कर दोची मो अगेंस्ट यूज हो पारिबानी बट से कहला परे मो रिवोक कर परिबी नाही तो 17 इज एडमिशन 18 किए एडमिशन दबो 19 जहार पोजीशन और लायबिलिटी अगेंस्ट टू द पार्टी अच्छे से दे पारिबो 20 जहाँ को रेफर करा होची से दबो एति मन रखंतु लेट्स टेक अ ब्रेक देन विल बी कमिंग आफ्टर द ब्रेक and break सरीब around 2:45 रे and we will be taking class today जो पर्यंत एविडेंस एटलीस्ट लास्ट क्लास सेक्शन में न पहुंची जाए ओके एविडेंस डिफिकल्ट लग किछि 19 कहला कि जहार पोजीशन और लायबिलिटी अगेंस्ट द पार्टी सॉरी जो मोस्टली सर जो एविडेंस आज तीनटा तीनटा रे स्टार्ट कले तीनटा रो चारटा पांचटा छटा सातटा 4 घंटा एविडेंस आराम से सरी डोंट वरी कहीं ना 100 पर किसी ना ही खाली गोटे 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 सेक्शन ही मुझे कह तो आराम से सर टेंशन नहीं ओके लेट्स कम आफ्टर द लंच ब्रेक बाय बाय हैव अ गुड लंच भलसे खातु खाइया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करेंगे पढ़ला पर्यंत बिकज खाइले ही एनर्जी आसो सो हैव योर फूड प्रॉपर्ली टिल योर एग्जामिनेशन आफ्टर दैट आल्सो हाँ 2:45 आई विल बी कमिंग स्टार्ट करूँ 3टा ओके बाय